हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की मेंस आंसर राइटिंग क्लास में। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिगार्डिंग एमपीपीएससी 2025 2026 मेंस. So these questions need to be answered, which are: what are the names of the Saptadvipas mentioned in the Puranas? So this question comes from the geographical knowledge from the ancient India. This topic has been newly added into the syllabus. साथ ही हम देखेंगे एक्सप्लेन द बीना रिफाइनरी. सो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एमपी स्पेसिफिक रीजन, right? And explain the cyclonic storms Biparjoy, right? So cyclonic storms में you all know कि different cyclones come in India, Indian coastal areas, especially from the Andaman Nicobar या Bay of Bengal region और Arabian Sea region. ठीक है? So these questions has been asked by MPPSC, and the questions are relatively tough in terms of the writing answers. So when we know the information regarding some of the aspects, but we don't know how to write, these questions get tough. Okay, so let's start with the answer writing session. Before that, a little bit of announcement is there. For 2026, our batch, that is Sangyan batch, right? So we have launched this batch. ये launch किया था हमने batch in the month of March. एंड संज्ञान 1.0 बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है, इसमें बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया. नाउ वी आर लॉन्चिंग संज्ञान 2.0. क्या लॉन्च हो रहा है अब? संज्ञान 2.0. So those classes for the Sangyan batch is going to start from tomorrow. So all the students who want to sincerely prepare for the mains 2026 can join this batch. In 8 to 10 months, the complete classes will be over. And there is an offer going on. If the students who are willing to join the Sangyan batch, they will get the daily answer writing program worth 12,000 rupees and the test series जो कि हमारी 6,500-7,000 की जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो सब अभी संज्ञान बैच के साथ फ्री है. राइट, सो इफ एनीबडी इज subscribing to Sangyan 2.0, that person, that student is going to get the DAW, daily answer writing, which is our year-long program. Every day you are going to get answer writing assignments in that will be evaluated by me. Along with that, you will also get some test series which you will solve after the prelims examination in 2026. Along with that, you will get all the classes of paper 1 to 6 in the Sangyan batch, right? So that's a little bit of announcement. And along with that, Sangyan Foundation batch is also starting. So it is very very important कि जो बच्चे प्री कम मेंस दोनों तैयार करना चाहते हैं वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं. Along with that, this test series I am talking about year long test series. So जिन बच्चों को DAW नहीं करना, डेली आंसर राइटिंग नहीं करना, सर हमने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं बट हम ये चाहते हैं कि हमने बुक से पढ़ ली है, नोट्स बना लिए, हम चाहते हैं कि हम उस पर बेस्ड एक टेस्ट लिखें, तो वो टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. वीकली बेसिस पे एक टेस्ट होगा, यूनिट वाइज टेस्ट होगा. सो इट्स ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज विच इज यूनिट वाइज. कैसी है वो टेस्ट सीरीज? यूनिट वाइज. एंड इसमें टोटल कितने टेस्ट हैं? 50 टेस्ट. इट इज रिटन हियर. ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ बच्चे हैं जो एडवांस लेवल पे हैं, वो 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो 25 के लिए भी चल रही है, 26 के लिए भी. अभी भी 1.5 महीना बचा है उन बच्चों को जो जून में मेंस देने वाले हैं. तो ये टेस्ट सीरीज जरूर एक बार सॉल्व करें, एक बार फीडबैक लें, अपनी प्रिपरेशन को लास्ट टाइम पे पॉलिशिंग करें, सो डैट आपका एग्जाम क्लियर हो जाए. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द अनाउंसमेंट्स. इफ यू वांट कि सर आप कैसे कॉपी चेक करते हैं, सर इतनी डिटेल्ड कॉपी जो हमने टेलीग्राम पे देखी है या अलग अलग सोर्सेज पे देखी है, क्या हमारी कॉपी ऐसी ही चेक होगी? तो यस, एग्जैक्टली कॉपी ऐसे ही आपकी इवेल्युएट होने वाली है. सो एवरीथिंग विल बी मार्क्ड, means based on the content, then based on the structuring, how you are going to structure the answer. उसके बाद आपके आंसर में जो फैक्ट्स हैं वो, उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग में क्या सजेशंस हो सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय मी. हैंड राइटिंग रिलेटेड सजेशंस दूंगा. वैसे हैंड राइटिंग तो आपकी फ्रेंड्स चाइल्डहुड अभी डेवलप हुई है, बट यस छोटे मोटे ऐसे चेंजेस मैं आपको गाइड कर दूंगा जिससे आपके मार्क्स एटलीस्ट 20 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे मेंस एग्जाम में. राइट, सो व्हाट यू कैन डू, जितने भी बच्चे 2025 के लिए देने वाले हैं, जो अभी तक वेट कर रहे थे कि सर हम पढ़ लें, हम टेस्ट सीरीज देंगे, तो वो बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ ग्रामेटिकल एरर्स पे भी मैं ध्यान दूंगा. देयर इज नो नीड टू बी अशेम्ड ऑफ. अगर हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम करते हैं तो अभी यही समय है इसे सुधार लिया जाए, सो डैट हमारे मेंस में अच्छे मार्क्स आए.
ठीक है। सो दीज आर द इवैल्यूएटेड कॉपीज बाय मी, सो आई विल इवैल्यूएट दोस टेस्ट कॉपीज। चलिए, so let's start with the first question of the day, and this question is, what are the names of the Saptadvipas mentioned in the Puranas? So this question comes from the topic geographical knowledge from ancient India. अब यहाँ पे सप्तद्वीपास का नाम पूछा गया है जो पुराणास में मेंशन्ड है, ठीक है। So let's start. कौन सा सप्तद्वीप है वो? So these सप्तद्वीपास और the 7 continents in Puranas mentioned are जम्बू, जैसा कि आपने सुना होगा जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, भरतवर्षे, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। एंड इफ यू आर अ हिंदू, डेफिनेटली आपके घर में कभी कथा हुई होगी तो पंडित जी ने जो जिस तरह से ईष्ट देव की स्थापना की होगी, तो वहां पे भगवान जी की स्थापना के टाइम भी हम लोकेशन मार्क करते हैं पंडित जी, तो जम्बू द्वीपे, भरतवर्षे, भरत खंडे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पूजन के दौरान। तो आपको पता होगा कि जम्बू द्वीप जो है वो भारतवर्ष के लिए यूज किया जाता है। तो जम्बू द्वीप दैट इज अवर कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं। सो जम्बू हो गया। सेकंड इज द प्लाक्ष, जम्बू, प्लाक्ष, शलमली, कुशा, क्रौंच, शाका एंड पुष्करा। सर ये नेम्स हमको याद करने पड़ेंगे? यस, आपको सिर्फ माउंटेन्स या बेसिकली कॉन्टिनेंट्स ही याद करने से काम नहीं चलेगा। तो कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के बाद आपको माउंटेन्स याद होने चाहिए। इन द एंशियंट इंडियन पार्ट, इन द वैदिक रिलीजन सेक्शन ऑफ द एंशियंट इंडिया, वी ऑल्सो लर्न अबाउट द वैदिक नेम ऑफ द रिवर्स, तो वो नेम्स भी आपको याद होने चाहिए, राइट। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद अगर पौराणिक कथाओं में अगर कुछ मेंशन होता है, प्लस इसके बाद अगर एपिक्स में कुछ मेंशन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जनपदास वी आर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द महाभारत, तो उस समय अंग देश के राजा कर्ण थे। तो अंग देश कौन सा रीजन है ये आपको पता होना चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेजेस forms the part of your syllabus. बात समझ में आई आपको? So that's what I am giving you simple hint. I am also bringing some content which can help you in getting some direction कि सर किस दिशा में हम पढ़ाई करें, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें, क्योंकि एक एक 2 मार्कर क्वेश्चन आपको ओवरऑल इंटरव्यू की तरफ लेके जाता है। तो सप्तद्वीप याद रखिए, जम्बू, प्लाक्ष, शलमली, कुशा, क्रौंच, शाका एंड पुष्करा, राइट। नेक्स्ट वैल्यू एडिशन कंटेंट, इसमें हम लिख सकते हैं कि एक जम्बू जो है, जम्बू द्वीप इज यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच इज भारतवर्ष ऑल्सो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन फ्रॉम द हिंदू कुश टिल द Arakan Yoma in the east, right? From North Himalayas to up to Andaman Nicobar Islands and Mauritius Islands in the south. यहाँ तक जितना बड़ा रीजन है वो सब भारतवर्ष है, जम्बू द्वीप है एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू कैन गिव इन द एग्जामिनेशन इफ यू हैव टाइम। अगर टाइम नहीं है तो आपने सिर्फ अगर ये 7 नेम्स भी लिख दिए तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट यू नीड टू राइट द नेम इन विथ करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। इसके बाद सर एंशियंट इंडियन ज्योग्राफिकल नॉलेज में हम इससे रिलेटेड और क्या पढ़ सकते हैं? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 द्वीपास आर प्रेजेंट अराउंड माउंट मेरू। तो हम ये बोल रहे हैं कि अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है वो जम्बू द्वीप में माउंट मेरू के पास है। अब माउंट मेरू का सिग्निफिकेंस वैदिक रिलीजन में या वैदिक टेक्स्ट में या पौराणिक टेक्स्ट में कई बार पामिर नॉट के लिए आता है। किसके लिए आता है? पामिर नॉट के लिए आता है। तो एक है कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत, और एक है मेरू पर्वत। सो मेरू पर्वत इज यूज्ड फॉर पामीर नॉट, और हम सबको पता है कि पामीर नॉट से ही हमारे डिफरेंट काराकोरम रेंज हो गया, जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस है वो ओरिजिनेट होती हैं। देन फ्रॉम नामचा बरुआ टू नंगा पर्वत, हमारे यहाँ हिमालयाज है वो भी पामीर नॉट से ओरिजिनेट हो रही है। फिर हिंदू कुश रेंज हो रही है। फिर some ranges are entering into the Iran, they are also going there, and then some ranges are going into China, they are also starting from the Pamir Knot. So इसी को हम बोलते हैं रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। माउंट मेरू को हम क्या बोलते हैं? रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये नाम हमने पामिर नॉट के लिए यूज करते हैं हम ज्योग्राफी में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर तिब्बतन प्लेट्यू। देखिए जितनी भी बातें ये मैं सेशन में आपको बता रहा हूं, एक एक बात आपके माइंड में जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता है, तो नॉलेज आप जो गेन कर रहे हैं उसको ध्यान से सुने, और बस आप मेरा वीडियो ध्यान से सुनते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको एक बहुत ही स्ट्रांग बेस तैयार हो जाएगा मेंस आंसर राइटिंग का, कि कैसे हम चीजों को अप्रोच करें, कैसे हम लिंकेजेस बनाएं, कैसे हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे जम्बू, प्लाक्ष, शलमली, कुशा, क्रौंच, शाका, पुष्कर के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये सारे
continents, they are centered around what? They are centered around Mount Meru according to our Vedic, Puranic and the epic text. इसके आगे अगर वैल्यू एडिशन में बोलूं, अगर मैं रिवर्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला रिवर्स, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब भी हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम वैदिक टाइम के जो नेम्स हैं रिवर्स के उन पे फोकस करते हैं। जैसे झेलम इज आइडेंटिफाइड विथ विटास्ता, तो विटास्टा डायरेक्ट भी आपको 2 मार्कर में आ सकता है, बट इट इज अ वेरी कॉमन नोन नेम्स, क्योंकि अलेक्जेंडर का जो बैटल हुआ था ऑन द बैंक्स ऑफ लाइक इन द इंडस वैली रीजन, किस रिवर के बैंक में हुआ था, ऐसे सवाल आते हैं। और वहां पे जो नाम आपको लिखना होता है वो उसी टाइम का वैदिक, लेटर वैदिक या महाजनपदा पीरियड के टाइम के नेम्स लिखने होते हैं। सो यहाँ पे झेलम को हम वितास्ता से रिकॉग्नाइज करते हैं, चेनाब को हम असिकनी से रिकॉग्नाइज करते हैं, रावी को हम इरावती से रिकॉग्नाइज करते हैं, ब्यास को हम विपास से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सतलज को हम शतुद्री से रिकॉग्नाइज करते हैं। सो यू कैन नोट दिस डाउन इन योर नोट्स कि सर ये जो रिवर्स के नाम है along with the name of continents, जो मैंने 3 चीज बोली आपको यहाँ पे तैयार करना है। एक तो आपने कॉन्टिनेंट्स, इसका आप मैप भी जरूर बनाएंगे, राइट? आई कैन शेयर इट इन द नेक्स्ट सेशन इफ यू डोंट फाइंड इट। कॉन्टिनेंट्स के साथ हम साथ में माउंटेन्स का पढ़ेंगे, माउंटेन्स के रिलेटेड भी मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ आज, और इसके बाद रिवर्स पढ़ेंगे। अगर इसके अलावा कोई प्लेट्यू है जिसके बारे में आपने कोई भी वैदिक रिलीजन या वैदिक टाइम या एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड आप उसको आपको कहीं मिलता है तो वो भी आपके सिलेबस का पार्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो अब सप्तद्वीपास में देखिए माउंटेन्स की हम बात करते हैं तो टोटल 7 इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स की बात की गई है महाभारत में। स्पेशली कहां पे बात की गई है? महाभारत में। क्योंकि क्या है, जैसे आपको पता है कि युधिष्ठिर अपने डॉग के साथ और साथ ही साथ सारे पांडव लास्ट में स्वर्ग की तरफ आगे बढ़े थे, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर और उनके डॉग जो थे, उनका पेट था, वो कहां जा पाया था? स्वर्ग। तो ड्यूरिंग द महाभारत many times it was mentioned that there were several mountain chains and they all were considered as the door of heavens. And what is the reason behind that? Door of heaven का मतलब क्या है कि आप वहां पे तपस्या कर रहे हैं। So if you are talking about the Himalayas, Aravalis, Vindhyans, Camours, Panna range, Satpura range, Maikal range, which is extending into the towards the Odisha, Bastar plateau, also in the Chota Nagpur plateau. Then we have the Western Ghats, then we have the Eastern Ghats, Mahendragiri, and also we have the Southern hills like Anaimudi, Cardamom hills. ठीक है? सो ये जो हिल्स हैं जो आज हम ज्योग्राफी में जानते हैं, इनके नाम एंशिएंट टेक्स्ट में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब वो क्या है वो हम देख लेते हैं। सो कुल पर्वत क्या है? कुल पर्वत वो सारे पर्वत हैं। ये भी एक आपका 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में, राइट? 2 मार्क्स में आपसे क्या पूछ सकता है अगले साल, यानी 2025 में या 26 में क्वेश्चन हो सकता है कि कुल पर्वत क्या है। अब कुल है तो बेसिकली इट्स अ ग्रुप, राइट? एंड इट्स अ फैमिली ऑफ पर्वत, सो देयर आर डिफरेंट चेन्स इन दैट। कोई एक पर्वत का नाम ये नहीं है, बट इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं? जैसे इस साल 7 कॉन्टिनेंट पूछ लिया, अगले साल ये 7 इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स इसमें भी आती हैं। कितने आती हैं टोटल? 7 माउंटेन चेन्स, तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो सर ये क्या क्या है? लेट्स सी, इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले महेंद्रगिरी विच इज ईस्टर्न घाट्स इन ओडिसी, वी ऑल नो दैट दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, महेंद्रगिरी। इसके बाद हमको पता है वेस्टर्न घाट्स को आज भी हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तो सहया वर्ड कम्स फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। इसके बाद मलय, मलय, मलाया वर्ड जो हम यूज करते हैं वो मलेशिया के लिए नहीं, साउथ इंडियन चेन्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कार्डमम हिल्स और अनाई मलाई हिल्स, जिसकी पीक अनाई मुड़ी पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। इसके बाद नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है, वी ऑल नो दैट। तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स का फैक्ट भी रिवाइज करते रहिए, बहुत सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं। तो एक हो गया महेंद्र, सेकंड हो गया सहाया, थर्ड हो गया मलय, राइट? दिस विल बी द ओपन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको लीक कर रहा हूं, ये आने वाले एग्जाम से पूछा जाएगा, कुल पर्वत। इसके बाद सूक्तिमती, सूक्तिमती नदन विंध्यंस को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? नदन विंध्यंस को। बेसिकली बुंदेलखंड रीजन एंड बघेलखंड रीजन में जो भी विंध्यंस है उन्हें बोला जा रहा है। उसके बाद आता है ऋक्षवत। उसके बाद क्या आ रहा है? ऋक्षवत, जिसको मैकाल एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू के माउंटेन्स को ऋक्षवत बोला गया है, राइट? भीम ने कई बार मेंशन किया है इन माउंटेन चेन्स का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको पता है कि पांडवों को भी वनवास करना पड़ा था, दैट्स व्हाई दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स ऑल ऑफ द नॉर्थ इंडिया एज वेल एज द नॉर्दर्न प्लेन्स एज वेल एज द पेनिनसुलर इंडिया।
अब क्योंकि कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, ये सारा रीजन हस्तिनापुर का था, तो दे माइग्रेटेड इन विच रीजन? इन द पेनिनसुलर रीजन. So that's why these mountains were mentioned during the Mahabharata. So Rikshvat जो है वो मैकाल एंड छोटा नागपुर है. Vindhyans north of Narmada, the normal Vindhyans which are extending from where? From Gujarat till north of Narmada and up to Kaimur. ये जो बेसिक Vindhyans है, ये उनकी बात हो रही है. राइट. उसके साथ साथ नदन विंध्यंस जो पन्ना रेंज है, बिजावर रेंज है, भानरेर रेंज है, ये जो रेंजेस हैं इसको हमने सूक्तिमती का पार्ट बोला है. राइट. तो ध्यान रखिएगा, विंध्यंस जो हम आज एमपी में पढ़ते हैं उसके भी दो हिस्से पौराणिक कथाओं में अलग अलग नाम से दिए गए हैं. एंड साथ में सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है अरावलीज, विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द इंडियन पेनिनसुला, जो हम कंसिडर करते हैं, उसका नाम है परियात्र माउंटेन. तो क्या क्या सर हमको याद करना है? महेंद्र, सहया, सूक्तिमती, ऋक्षवत, विंध्य और परियात्र यानी अरावलीज. तो ये ओपन क्वेश्चन दे रहा हूं आने वाले एग्जाम्स का, दैट इज कुल पर्वत. इसको जरूर से रेडी करके और आप एग्जाम में जाएं, आपके मार्क्स 2 आउट ऑफ 2 आएंगे. ठीक है. तो बेसिकली वी हैव सीन रिवर्स, वी हैव सीन माउंटेन्स एंड वी हैव सीन कॉन्टिनेंट्स. नाउ इट्स अप टू यू हाउ वेल यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स एंड रिप्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन. So let's move on to the second question. Again a 2-marker question. This question says explain the Bina refinery. तो हमारे एमपी में बीना रिफाइनरी प्लांट और साथ में विजयपुर का प्लांट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का प्लांट, ये दो प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने लायक हैं, और इसमें से बीना रिफाइनरी ऑलरेडी पूछा जा चुका है. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन राइट इन दिस क्वेश्चन. सो बीना रिफाइनरी की सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसकी लोकेशन से. जरूर आप इस तरह के की पॉइंट्स बनाएं. मैं सभी बच्चों को हेल्प करता हूँ, इवैल्यूएशन करता हूँ, गाइड करता हूँ कि आप सब जब भी आंसर लिखें पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करके एग्जामिनर का टाइम वेस्ट ना करें. बीना रिफाइनरी इज लोकेटेड इन सागर डिस्ट्रिक्ट. देखिए इस सेंटेंस से अच्छा है, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या दे दिया, पहले ही लिख दिया कि मैं क्या बताने वाला हूं, मैं लोकेशन बताने वाला हूं. ऑयल रिफाइनरी कहां पे है? बीना, बीना इन सागर डिस्ट्रिक्ट. यानी लोकेशन देखते ही एग्जामिनर आपको 0.5 मार्क्स दे देगा. राइट. व्हाट सेकंड पॉइंट वी कैन इंक्लूड इन दैट? ओनरशिप. ओनरशिप भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड की है, विच इज अ सब्सिडरी, होलली ओन्ड सब्सिडरी है ये बीपीसीएल की. ठीक है. भारत ओमान के ज्वाइंट वेंचर से ये बनी थी. राइट. दोनों के एफर्ट से बनी थी, लेकिन आज की डेट में जो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है, इट्स अ होलली होलली ओन्ड सब्सिडरी. सही स्पेलिंग लिखेंगे एग्जाम में. होलली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बीपीसीएल. किसकी है? बीपीसीएल की सब्सिडरी. कब से? 2021 से कंप्लीटली बीपीसीएल इसको ओन करता है, बट एक्चुअल में उस सब्सिडरी का नाम है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, BORL. क्लियर. तो अब अगर आप एग्जाम में लिख दें बीपीसीएल के अंडर वर्क करती है, होली ओन्ड बाय बीपीसीएल, तो भी चल जाएगा. कमीशन कब हुई थी ये फैक्ट्री, ये बीरा रिफाइनरी? बेसिकली 2011 में कमीशन हुई थी. सो देयर आर मल्टीपल फैक्ट्स वी हैव मेंशन्ड हियर. दैट इज द लोकेशन, ओनरशिप ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बीपीसीएल सिंस 2021, साथ ही साथ कमीशन इन 2011. तो इस तरह के 4 फैक्ट्स मैंने आपको दिए. एंड इन एवरी 2 मार्कर यू नो that 0.5 marks will be assigned for the facts if you are writing it correctly. 0.5 into 4, 2 marks. कई बार सीधे जैसे आपने सारे के सारे अभी जो क्वेश्चन देखा सप्तद्वीप का, तो वहां पे 7 पॉइंट्स लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. राइट. सो याद रखिए मार्क्स का डिवीजन बहुत ही माइन्यूट लेवल तक होता है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, पॉइंट बाय पॉइंट मार्किंग होती है आपके एग्जाम में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की विजयपुर कॉम्प्लेक्स की मैं बात किया, और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रोबेबल है. सो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए लिखा है द लोकेशन. अगेन उसी तरह से की पॉइंट को हाईलाइट करके और बॉक्स बना के आगे बढ़ेंगे. इट्स अ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन विजयपुर, गुना. डिस्ट्रिक्ट क्या है? गुना डिस्ट्रिक्ट है. ध्यान देना इस बात को आपको. कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गुना डिस्ट्रिक्ट है. एंड इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल इसको ऑपरेट करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुना में ये लोकेटेड है. इट्स अ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स. राइट. सो है ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, लेकिन ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहलाता है. अब सर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हम गैस बेस्ड अमोनिया एंड यूरिया यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं. So this is again a very important point if you want to score 2 marks in this question, and the question will be simple: National Fertilizer Vijaypur Complex या विजयपुर फर्टिलाइजर प्लांट या विजयपुर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स. इस तरह की कोई भी चीज एग्जाम में आएगी तो ध्यान रखिएगा.
ठीक है, सो ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया विच इज वेरी प्रोबेबल इन द कमिंग एग्जामिनेशन. So I can show you some pictures related to that. So this is the picture of Bina refinery. किसका है ये पिक्चर? Bina refinery. राइट. सो कब कमीशन हुई थी ये? 2011 में. होली ओन्ड सब्सिडरी कब बनी? 2021 में. किसकी सब्सिडरी है? बीपीसीएल की. एंड बीओआरएल इसका पूरा नाम है, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड. दिस इमेज इज ऑफ एनएफएल्स विजयपुर कॉम्प्लेक्स. किसकी है ये फोटो? एनएफएल की विजयपुर कॉम्प्लेक्स की है. ध्यान देंगे इसको. सो दीज इमेजेस आर ओनली हेल्पफुल टू रिटेन द करेक्ट फैक्ट फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, ध्यान रहेगा अब आपको. प्लीज इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छे स्कोर कर सके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बिपर जॉय. हम सब ने इसको न्यूज में सुना है अबाउट द बिपर जॉय. ये जो है वेस्टर्न कोस्ट में आने वाला साइक्लोन था. बहुत सारे साइक्लोन्स हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो वेस्ट कोस्ट में आते हैं, बहुत सारे ईस्ट कोस्ट में आते हैं जो एंटर करते हैं उड़ीसा से, कभी तमिलनाडु से, कभी आंध्रा से, और कभी डायरेक्टली वेस्ट बंगाल साइड या बांग्लादेश में एंटर करते हैं. तो ईस्ट टू वेस्ट ये जनरली साइक्लोन्स मूव करते हैं, ये बात आपको समझनी है. अगर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ट्रॉपिकल रीजन में हमारा इंडियन पेनिनसुला आता है. ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है 23.5 और इक्वेटर के बीच में. सो 23.5 तो हमारे एमपी के 14 डिस्ट्रिक्ट से जा ही रही है. इसके नीचे का पूरा इंडिया ट्रॉपिकल इंडिया ही कहलाता है. ट्रॉपिकल रीजन में जो दो हमारे राइट एंड लेफ्ट इंडियन ओशन के पार्ट है, जो सी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी, इन दोनों में ही साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन ये अलग अलग सीजन्स में आते हैं. ये बात बहुत की पॉइंट है, सीधे मुद्दे की बात बता रहा हूं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा. मुद्दे की बात जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर मंथ अप्रैल मई और जून का है तो साइक्लोन हमारे यहां अरेबियन सी में आएगा. अगर मंथ सितंबर अक्टूबर नवंबर का है तो हमारे यहां साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आएगा. वेरी वेरी क्लियर. अभी रिसेंटली 3-4 मंथ्स बैक फेंगल जो है तमिलनाडु कोस्ट में हिट किया था. किसने हिट किया था? फेंगल नाम के साइक्लोन ने. और रिसेंटली कुछ मूवीज भी आई थी, जैसे जेलर मूवी आई थी रजनीकांत जी की, उसके प्रमोशन के लिए एक साइक्लोन फेंगल का मेंशन किया गया था तमिलनाडु में बाय द डायरेक्टर. तो इफ यू नो द करंट अफेयर्स यू कैन रिलेट थिंग्स. बट अब यहाँ पे अगर बिपर जॉय पे क्वेश्चन आता है तो बिपर जॉय आने वाला था इन द मंथ ऑफ मई जून, और ये आया वेस्टर्न कोस्ट में, और ये वेस्ट कोस्ट से इंडिया में एंटर नहीं किया बट इंडिया को टच करते हुए वेस्ट की तरफ मूव कर गया. तो इंडिया को टच करते हुए मूव कर गया मतलब इट मूव्ड लाइक दिस, यहां से ऊपर की तरफ गया, देन इसने मुंबई को टच किया, देन गुजरात कोस्ट को टच किया यानी काठियावाड़ पेनिनसुला को, एंड देन इट फाइनली वेंट टुवर्ड्स द वेस्ट. सो जनरली साइक्लोन्स, हमेशा याद रखना, जनरली साइक्लोन्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल मैरीटाइम रीजन. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया क्रक्स बता दिया. इफ यू विल रिमेंबर दिस, आपके एग्जाम में मार्क्स 100% आएंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा. अब व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन राइट दैट इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्ड ओवर अरेबियन सी इन जून 2023. देखिए मंथ इंपॉर्टेंट है जून, जरूर लिखना. समर सीजन में आपको पता होना चाहिए जून वाले मंथ में लेफ्ट में यानी वेस्ट अरेबियन सी में वेस्टर्न कोस्ट में 2023 में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आया था उसका नाम बिपर जॉय. दूसरी बात, बिपर जॉय नाम बंगाली नेम है विच वाज गिवन बाय बेसिकली बांग्लादेश एंड इट मींस व्हाट? डिजास्टर. सो बिपर जॉय का जो नाम है वो क्या है? डिजास्टर उसका नाम है. राइट, एंड इट्स अ बंगाली टर्म. तो दो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अफेक्टेड रीजन. अफेक्टेड रीजन में आपने मुंबई एंड गुजरात कोस्ट दिया. And then wind speed reaches up to 200 km per hour. That is fundamental for any cyclone. It reaches up to 200 km per hour. That is the average speed of cyclone. ठीक है, तो ये आपने कितने फैक्ट्स दिए? देखिए, एक तो ये आपने क्या बताया, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है. दूसरी बात बताया अरेबियन सी में आया था. थर्ड फैक्ट आपने दिया टाइमलाइन जून 2023 की. 3 फैक्ट हो गए. फोर्थ फैक्ट आपने बताया बिपर जॉय की मीनिंग डिजास्टर है. फिफ्थ फैक्ट बताया अफेक्टेड जो रीजन है वेस्टर्न कोस्ट का वो है मुंबई एंड गुजरात कोस्ट. और सिक्स्थ फैक्ट अगर आप नहीं भी देंगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, बट विंड स्पीड्स रीचेस अप टू 200 किलोमीटर पर आवर फॉर द साइक्लोनिक विंड्स. याद रखिएगा इस फैक्ट को. आप लिख देंगे तो इट्स अ जेनेरिक आंसर, ये आपको पॉइंट्स फेच करके देगा, मार्क्स फेच करके जरूर देगा. सो इस तरह से देखिए जो की पॉइंट्स है, इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिपर जॉय की मीनिंग, अफेक्टेड रीजन एंड विंड स्पीड्स. दैट्स हाउ यू कैन कोरिलेट द थिंग्स.
अब आपको पता है कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ऑफ शोर में आपके पास पेट्रोलियम ऑयल ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, राइट, ऑयल ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ शोर में। तो आपको याद होगा कि जब बिपरजॉय न्यूज में था तो हेलीकॉप्टर से वहां से एक्सकेवेशंस किए गए थे। बहुत सारे एम्प्लॉयज जो थे वहां पे जो ड्रिलिंग कर रहे थे ऑयल वेल्स में, वहां से उनको तुरंत वहां से इवैक्यूएट किया गया था, एंड इट वाज इन न्यूज फॉर सो मैनी डेज, राइट। साथ ही साथ गुजरात के जितने आपके पास कोस्ट है, पोरबंदर हो गया, ओखा हो गया, कांडला हो गया, ये सारे पोस्ट पे जो है हाई अलर्ट लगाया गया था, सारे पोर्ट्स पे, और वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड बिपर जो है। अब रिसेंटली जो न्यूज में आने वाला एक साइक्लोन है जो आने वाले एग्जाम में प्रोबेबल हो जाता है, वो है साइक्लोन दाना। और साइक्लोन दाना बे ऑफ बंगाल रीजन में आया, उड़ीसा वेस्ट बंगाल रीजन में आया, अक्टूबर 24 टू 25 2024 में आया। तो ये मैं वैल्यू एडिशन में आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे साइक्लोन फिंगल आया था, कहाँ पे, अगेन बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी रीजन में, वो भी 2024 नवंबर में आया था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ में आने वाले जनरली कहाँ आएंगे, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में आएंगे, और अप्रैल मई जून वाले कहां पे आएंगे, वेस्टर्न कोस्ट में आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो ये इंडिया का साइक्लोन कॉरिडोर है, देखिए यहां पे आया था बिपरजॉय, इट मूव्ड लाइक दिस, देन इट हिट्स द काठियावाड़, देन कच्छ पेनिनसुला, एंड इट वेंट लाइक दिस। तो ये है आपका बिपरजॉय, यानी डिजास्टर, बंगाली नेम बाय बांग्लादेश। ईस्ट कोस्ट में देख सकते हैं टोटल 7516 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइंस है, तो वहां पे साइक्लोन प्रोन है। ईस्टर्न साइड में आप डायग्राम देख सकते हैं कि अप्रैल टू मई वाला सेक्शन ये है, देन जुलाई टू सितंबर वाली जो थिक लाइंस हैं वो एग्जैक्टली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद का जो सेक्शन है द सदर्न ईस्टर्न सदर्न कोस्ट, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, वो वाला रीजन अक्टूबर नवंबर का है, जहां पे आपने दाना और फेंगल दोनों ही देखे। तो ये है मैप साइक्लोन प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया का। अगर इस तरह का क्वेश्चन मेंस में कोई 7 मार्कर में आ जाए साइक्लोन प्रोन्स में, तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, कोस्ट की लेंथ लिखिएगा। 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आज मैंने आपको बताया, दैट इज दाना, फेंगल और बिपरजॉय, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 7 मार्कर क्वेश्चन और 10 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 3 क्वेश्चन किए, सप्तद्वीप का क्वेश्चन किया, बीना रिफाइनरी का क्वेश्चन किया, और साथ ही साथ बिपरजॉय साइक्लोन का क्वेश्चन किया, right? So once again, I am just briefly mentioning about the Sangyan 2.0, which is starting from tomorrow. It's a mains as well as foundation Sangyan batch. So you can subscribe to that on our application MPPSC Adda, from Play Store, from iOS, from website mppscadda.com, कहीं से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 8 to 10 मंथ्स में सिलेबस मेंस का कवर हो सकता है, बाकी 1 ईयर पूरा प्री कम मेंस फाउंडेशन चलेगा, राइट। ऑल्सो द टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन, ईयर लॉन्ग 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज 2026 की भी चालू हो गई है, और 2025 के भी जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे और सोच रहे हैं अब आने वाले 40 दिन में कुछ आंसर्स लिखूं, टेस्ट लिखूं, वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डील्ड विद सप्तद्वीपास, बीरान रिफाइनरी एंड द बिपरजॉय। सो आई होप इन दिस सेशन यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस सेशन, थोड़ा आपका कंटेंट एनरिचमेंट हुआ है, आपको स्ट्रक्चरिंग समझ में आई है, एंड आपको थोड़ा सा आंसर लिखने की स्किल डेवलप हुई होगी। सो आज का ये सेशन मैं यहीं एंड करता हूं। जितनी भी चीजें मैंने बताई, होप आप सब तक पहुंची हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड लिसनिंग टू मी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सब बढ़िया सीरियसली पढ़ाई करिए, डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।